In 5, 4, we're live. Good evening, everyone. Welcome to another exciting episode of Entab presents Campus Care Champions, a platform where we introduce you to the stalwarts who have fought vigorously hard to achieve something. A dynamic platform where personalities from different walks of life and genre come together. People from various fields like bureaucrats, sports, business, stand up comics, tech influencers, motivational speakers come on board and share their beautiful journey with us. Today, I feel immensely honored to have a very special guest with us. I'm excited to have her on board with us. She's the epitome of fierceness who has made her way to become the first and highest woman ranking officer. She is someone who has dedicated her heart, mind, and soul to the civil services and has worked on various social welfare projects. She is someone who has been an unconventional person since childhood. Through her persistent hard work, courage, and zest, she has set an example for young ladies to join the prestigious services. In real sense, she is a Talaiva officer, the one and only Miss Kiran Bedi. Ma'am, welcome on board. Thank you very much, Entab team. And that's Dr. Kiran Bedi. Ma'am, it's an honor to have you here. And we have हमारे पास पिटारा है questions का because आपकी journey इतनी exciting रही है. So I was going through so many things, but वहाँ पे जाने से पहले, let me tell my audience that recently ma'am has penned down an incredible treasure on governance and leadership. The book Fearless Governance is gaining immense popularity, for it provides revelation to stark realities of governance. Book कहाँ से आप Amazon से ले सकते हो वो description में mention है. So make sure you go and get that book and make sure आपको leadership सीखने को मिलेगी, आपको empowerment सीखने को मिलेगी, how to जब मैम को पुलिस मेडल मिला था उसके बारे में भी बात करेंगे. I know there is so much to talk about, and this book is actually an expansive journey of ma'am's 40 years of experience in Indian Police Services. So it is a book to read, see, hear and feel. तो जाइए मैम की बुक लीजिए and उनकी जर्नी का हिस्सा बनिए. So जरूरत नहीं है लेने के लिए, वेबसाइट में मैंने रख दी है, आप कोई भी डाउनलोड कर लो. मैम आपने फ्री कर दी? हाँ. मैम दिस इज मैम ये आपका बड़प्पन है. That's why you're the best, I guess. ये आप kiranbedi.com पे जाओ, वहाँ लिखा हुआ है Fearless Governance, डाउनलोड और पढ़ लो. Free soft copy, yeah, it's available. Right. So guys, what are you waiting for, ma'am? अभी मत जाना, अभी पहले ये शो देखिए. जैसे ही आपको टाइम मिलता है उसके बाद या साइड बाय साइड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, जिससे आपको नया रोज तो आप पूरी बुक अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप थोड़े थोड़े कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो उसमें से डेली बेसिस पे. ऑलराइट मैम, कमिंग क्विकली, so we want to know that in your childhood what was your dream? You always dreamt of joining the coveted services or some other profession was in your mind? No, मुझे ये पता था कि मुझे वैसे नहीं बनना जो मुझे अच्छा नहीं लगता. वैसे नहीं बनना. जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना. मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं. मैंने किसी को से हुक्म नहीं चलवाना. मैंने अपनी स्पेस में जीना है. मैंने अपनी रोटी रोजी खुद कमानी है. मैंने बड़े होकर अपने मम्मी डैडी का भी ध्यान रखना है. मैं किसी से कम नहीं होनी. मेरे लिए कोई डाउरी नहीं होनी चाहिए. मैं अपने फैसले खुद करूंगी. सो ये था. ये नहीं था कि एक दिन मैं, ये जरूर था कि हाँ पब्लिक सर्विस में भी जाऊंगी. क्योंकि उस वक्त क्योंकि मैं टेनिस की प्लेयर थी, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट्स डिफरेंट लेने. अगर आपने मेडिकल करना है तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए. लेकिन क्योंकि मैं टेनिस खेलती थी तो शाम को अब मेरे पास लेबोरेटरी के लिए और टाइम नहीं होता था, तो इसलिए मेरे सारे लिबरल आर्ट्स थे, मेरे ह्यूमैनिटीज थे सब्जेक्ट्स. तो ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स. सो मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना एक मेरे लिए लक्ष्य था. लेकिन ये था कि मुझे
जैसे बाकी विमेन है वैसे नहीं बनना, साड़ी पहन के गहने पहन के घूमना नहीं, मुझे नहीं ऐसे करना, मुझे खेलना है, काम करना है और दूसरों के काम आना है। Right. Ma'am, I have this very vivid image of yours in my mind, wherein you were wearing a suit and uske niche you were wearing sports shoes. And you were always so energetic and always on toes कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे. So, ma'am, how do you feel so energetic and what do you actually do? What's your daily routine? मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं रोज सुबह फिटनेस जरूर करती हूँ, वॉक जरूर करती हूँ, एक्सरसाइज जरूर करती हूँ, योगा करती हूँ, अपने आप को फिट रखती हूँ। मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है, सो मैं नेचर में जरूर जाती हूँ, वॉक नेचर, सो साफ हवा, क्लीनलीनेस, ओपन स्काई, आई लाइक दैट। मुझे नेचर एंड आउटडोर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए टेनिस का जूता पहन के रखती हूँ तकरीबन। तो इसलिए ताकि कभी भी भाग जाऊं, अभी भी शायद मैंने टेनिस का जूता ही नीचे पहना हुआ है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी रूटीन शुरू होती है फिटनेस से, उसके बाद पढ़ती हूँ, आई रीड अ लॉट। दो चीजें, मेरी मॉर्निंग न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, मॉर्निंग एक्सरसाइज, और दूसरा पढ़ना। सो जब मैं रीडिंग कर लेती हूँ तो मेरा दिमाग में कुछ और नया आ जाता है जो मुझे एक्साइट करता है, मैं उसको फिर सेव करती हूँ, उसकी कटिंग रखती हूँ, अपनी लाइब्रेरी बनाती हूँ। मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी, हर सब्जेक्ट पे मेरी लाइब्रेरी है। सो वो लाइब्रेरी में मेरी क्लिपिंग जाती है, सो मैं अपनी लाइब्रेरी भी मेंटेन करती हूँ। पर ये आता नहीं सारी टाइम, बट फिटनेस, रीडिंग, दिस इट्स ऑल विद द माइंड, इट्स माइंड एंड बॉडी। उसके साथ साथ सादगी है, इट्स सिंप्लिसिटी। देन आई हैव अ वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट, कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेकफास्ट नहीं है। I just whip some fruit of my taste into the milk. I do a mixture and I drink that milkshake, which is fruit and milk. That's all. So this is the way I start my day, because it's so simple. It is nature oriented. It is food oriented for the mind, and it starts your day with energy. Right. All right, ma'am. Quickly, you started your service in 1975, if I'm correct, right? 72. Okay. And 75 was my first assignment in Delhi Police. Yeah. 72, I joined the Indian Police Service. Okay. And you received the first medal in 79. Correct. Right, ma'am. That medal, उसके पीछे की बहुत ma'am, भयानक is not the correct word, but बहुत shocking कहानी है. Yeah. Ma'am, इतने ज्यादा उसके, I don't know whether लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट मैं छोटा सा वो इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जब मैम को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला था फॉर गैलेंट्री, एंड मैम के सामने तकरीबन 700 से 800 अकाली जो थे वो ऑर्गेनाइज थे. देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन, एंड मैम, एंड दे हैड swords and everything, and ma'am with a baton charged towards them. मैम हिम्मत कैसे आई? वो टेनिस रैकेट से आई। मैं टेनिस, गर्ल्स, आई वांट एवरी चाइल्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप आउटडोर बन जाते हो, एनर्जी लेते हो, फिटनेस करते हो, खाते हो, पीते हो, हंसते हो, खेलते हो. It starts building your decision making, your adventure, risk taking. Just, you see, you are competing. तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है to grow up strongly as a child. इसलिए स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है. मैराथन करो, साइकिलिंग करो, बस में मत जाओ. अगर नजदीक स्कूल है तो साइकिल पे जाओ. डरो मत कि बस मार जाएगी. अरे हर चीज में डर है. सो आप तरीके से जाओ, वॉक करके जाओ. एक्सरसाइज करना एज अ चाइल्ड बिल्ड्स योर करेज, मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. और अगर आप कॉम्पिटिटिव हो गए तो आप ट्रैवल भी करोगे, राइट? तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इन अ वे इट्स बिल्डिंग योर करेज. So as a girl, then I was all-rounder. So जो भी स्कूल में एक्टिविटीज होती थी मैं हाथ खड़ा करती थी. मैंने भी जाना है, मैंने डांस भी सीखना है, मैंने बास्केटबॉल भी खेलनी है, मैंने परेड भी जाना है, मैंने एथलेटिक्स भी करनी है, मुझे सब कुछ करना है. तो जब आप सब कुछ करते हो, कुछ ना कुछ तो हर चीज में सीखते हो ना, तो आप ऑलराउंडर हो जाते हो. तो ये दिस और करेज बिल्डिंग, इट्स एक्चुअली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग.
courage and confidence come together. Right. This is how I earned my courage, confidence. Cycling 25 to 30 kilometers तो easily मैं रोज करती थी अमृतसर स्कूल से, मेरा घर और स्कूल, कॉलेज, टेनिस. सो ये एक्सरसाइज, फिटनेस, एडवेंचर. फिर शाम को नेचुरली सड़क पे आ रहे हैं, लड़के छेड़ेंगे. आपको लड़के छेड़ते, अभी भी छेड़ते हैं, अब तो कम छेड़ते हैं, पहले बहुत छेड़ते थे. तो हम भी उनको लड़ते थे. तो ये तो नहीं कि छेड़ के घर चले गए, तो उनको लड़ते थे, उनके पीछे पकड़ते थे कि क्यों करा तुमने. कई बार मुझे याद है कि कई बार उनकी वो पगड़ी होती थी, किसी छेड़ने वाले की पगड़ी, पीछे से पगड़ी पकड़ते थे, इतनी लंबी पगड़ी उसकी उतर जाती. तो हम भी हार के नहीं आते थे. फिर कई बार वो करता था, उसका साइकिल पकड़ लेते थे, वो साइकिल छोड़ के भाग जाता था, साइकिल मेरे हाथ में आ जाता, उस साइकिल को हम पुलिस स्टेशन तक दाखिल कराते थे. सी दिस वाज करेज. तो सडनली नहीं होता है करेज. करेज ग्रोज एज अ चाइल्ड, school girl, school boy, and then you learn it in college. So you continue activities. So that basically means sheltered life नहीं बताओ, unsheltered life. उसके लिए teachers, parents का बड़ा रोल होता है. They encourage you. My parents encouraged me. Right. So true. Ma'am spoke about eve teasing as well, and ma'am was assigned to West District in 1979, and there was I remember you assigned, you opened many new programs, and there was a relatively drop in the eve teasing cases in those districts. All right, I'll go to my first special child that I have with me. She's Gauri. Gauri, you can ask ma'am your question first. Thank you, sir, and thank you, ma'am. And first of all, I would like to share that I'm also a humanities student, and I also play basketball as a sport, and I'm really inspired by you, ma'am. So coming to my question, I wanted to ask, like, I learned that you're also a really proficient tennis player, and you talked about it recently also, and you made it to the nationals also, probably at a time when I wasn't even born. So I would love to know from you, ma'am, like, what was your inspiration and what thought made you to take such a tough decision to halt your career in tennis to be an IPS officer? And what do you feel was the guiding force throughout your journey to ace the UPSC exam? And as you were talking about your fitness routine, I'm really curious to know that, are you still playing tennis in that routine, ma'am? My tennis, am I playing? So you have so many questions. You ask so many questions. I think we'll have to break it up into 3-4 little questions. But first of all, if you're playing basketball and you're also studying, you're moving the right direction. Because basketball is a wonderful team game. So continue playing basketball. That will give you a game as you grow. Okay? So after you're fulfilling a wonderful condition, that will make you strong. And that will also team builds. It's very good. You रोज जीतते हैं, हारते हैं, भूख भी लगती है, खाना भी ठीक खाते हैं, नींद भी जोर से आती है, because you are tired, right? So, I think what I did not want to, I played tennis. I became a national tennis champion at the age of 16. I was junior national champion at the age of 16. Now, why I did it? Because my father used to be a very good tennis player. And tennis was a part of the family. It's like किसी की family में music है, किसी की family में sports है. मेरी family में tennis थी. We all as a family played tennis. So सुबह स्कूल से सीधा टेनिस कोर्ट जाते थे, घर नहीं, पहले स्कूल से टेनिस कोर्ट पे होमवर्क भी करना, खेलना भी, एक्सरसाइज भी करना, मम्मी ने भी आना, दूध और जूस लेके आना, सो सब कुछ वही. उसके बाद घर चले जाए, होमवर्क. So very organized life. That is why when you add sports to your student life, but I did not make it my career for the reason that I knew sports as a limitation. Sports is very important for your development. But sports, that time was not a career. Then it was like playing the game for the sake of loving the game. So that was the void. It was not for money. I wasn't playing for money. I was playing to learn, to compete and travel and open up the world as a part of education. And UPSC examination was my public administration mein jana. So I will work, and also very nationalistic in my approach.
मुझे अपना नेशनल मुझे स्कॉलरशिप भी आई आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स बिकॉज आई स्कोर्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन एंड आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू डू माय PhD. I did not go. I wanted to work in India and serve my country. So my preferences and likes are very clear. जो पसंद है वही करना है, जो पसंद नहीं वो नहीं करना. So that is I think that clarity in decision making is a part of courage. It's not sports playing, very good, because that is one thing. But I don't play now because now my time 5 o'clock, 4 o'clock is work time. It's a peak work time. So if I go to play at that time, then it breaks my day and takes away from my work. That's why I do my morning fitness every day. In fact, half of my home is a gym. Can you believe it? I have all the treadmills and the cross trainers. I have it as a cycling. I have it at home. Half of my living room is a gym. So मेरे पास ये नहीं है कि मेरे लिए आएगा बड़ा गेस्ट करेगा. जो गेस्ट है वो मेरी, अगर मैं कई बार मेरे पास गेस्ट की मीटिंग, मैं साइकिलिंग करती हूँ, कहते हैं हाँ बात करते रहो, लेट्स एंजॉय. So let's enjoy. So I think it's an unconventional way of working where fitness, work, education, studies, all is merged, and friendship all gets merged. Right, right. All right, moving forward, ma'am, DHI 18-17, हाँ, इससे क्या याद आता है आपको? DHI 18-17 ये क्या है? गाड़ी का कोई नंबर है क्या? एम्बेसडर कार, हाँ, PMO office, और चलान हुई जिसकी. wherein you got the nickname from Kiran Bedi to Crane Bedi, right? Ma'am, how was that experience? Children, this is important for you to know. Yeah. Now it's important कि जब आप ग्रो कर रहे हैं तो आप बड़े क्लैरिटी से आ रहे हैं, आपको सेंस. You see, sports also teaches you sense of justice, क्योंकि स्पोर्ट्स ओपन होता है, उसमें चीटिंग करते हो पकड़े जाते हो. यू प्ले बाय द रूल्स, राइट? एंड अगर फाउल है तो आप कहते हो ये फाउल, ये आउट था, ये इन था, यू क्वेश्चन. सो आई हैड दैट सेंस ऑफ जस्टिस. दैट सेंस ऑफ जस्टिस ट्रैवल्ड विद मी फ्रॉम माय स्कूल डेज, कॉलेज डेज टू माय वर्क. तो जब मैं काम करने लगी तो ट्रैफिक पुलिस में मुझे बताया गया, एज DCP ट्रैफिक, पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि मैडम आप चलान कहते हैं चलान करो. तो मैडम यहाँ चलान की कोई वैल्यू नहीं है. मैंने कहा क्यों? बोले पेपर चलान होता है, हम चलान करते हैं, उसके सामने हमारे पास कोई VIP होता है, वो चलान का कागज लेता है, फाड़ के आपको कहते हैं ये ले जा घर. मैंने कहा अच्छा क्यों करते? बोले मैडम यहाँ तो कोई कैंसिल कर देता है, ये चलान का पेपर लेके DCP के पास चले जाते हैं, DCP कैंसिल कर देता है. तो यहाँ कोई कैंसिल करता है और यहाँ वो फाड़ देता है. तो मैंने कहा ना अब फटेगा और ना अब कैंसिल होगा. वाई? बिकॉज हैड सेंस ऑफ जस्टिस. और ना मैं डरती थी किसी से कि क्या करेंगे, क्या कर लेंगे. सो मुझे ये जो इनर कॉन्फिडेंस है जो मेरे साथ ग्रो किया, वो बड़ा काम में आ गया. बिकॉज काम में हु यू आर बिकम्स यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हु यू आर बिकम्स यू. You are a person and a professional. The person in you is a professional, right? So who you are as a character building as students, you have put on a uniform. और कोई change नहीं है. अगर आप hard working by nature है, justice oriented है, stamina है आपके पास, अच्छी habits है, आपने क्या किया? सिर्फ यूनिफॉर्म ही तो पहना है और क्या है. लेकिन अगर अंदर से आप कमजोर है, आलसी है, आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, यूनिफॉर्म पहन लिया, वो हैबिट्स आपकी बाहर आती है यूनिफॉर्म के थ्रू. तो यूनिफॉर्म इज एन एक्सप्रेशन. हाउ द यूनिफॉर्म परफॉर्म्स इज व्हाट इज विद इन दिस यूनिफॉर्म, बिहाइंड दिस यूनिफॉर्म. तो मुझे कोई डर नहीं था किसी और से, क्योंकि मेरे में आत्म कॉन्फिडेंस बहुत था. आई वॉज नेवर फीलिंग कि मैं किसी से कम हूं या किसी से ज्यादा हूं. मैं कभी नहीं सोचा था मैं लड़की हूं या लड़का हूं, मैं कमजोर हूं. मैं कोई अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा. मैं तो लड़कों को, मैंने बताया ना, अगर कोई छेड़ता था तो मैं भी उनको ठीक ठोकती थी. सो ये मैसेज था. तो ऐसे ही हुआ. मेरे ऑफिसर ने मुझे, अब हमने कहा दिया अब ना कैंसिल होगा चलान, ना फटेगा, तो तुमने उसी का चलान करना है जिसको आप स्टैंड, और अगर कोई फाड़ेगा तो आप मुझे वायरलेस करना, गाड़ी का नंबर नोट करना और वायरलेस करना. तो मैंने अपने पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर कर दिया कि मैं हूं ना आपके साथ मैं हूं, आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, आप घबराओ मत, लेकिन करना, झूठ नहीं बोलना,
ठीक से करना, मुझे गिनती नहीं चाहिए इतने 100 चालान रोज चाहिए, मुझे 100 चालान नहीं चाहिए, मुझे 0 चालान चाहिए, लेकिन काम ठीक होना चाहिए। तो ऐसे ही एक बारी सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, उसका नाम है, इंडिया टुडे की स्टोरी है, उसने कहा, एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नाम आपने लिया, तो वो कह रहा, उस गाड़ी को बोला कि देखो तुम रास्ता रोक रहे हो, आप गाड़ी पार्किंग लॉट में ले जाओ, कनॉट प्लेस की जगह थी। तो उसने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तो उसने बोला मैं नहीं जानता, लेकिन आप गाड़ी ठीक करिए और आप अपनी जगह ले जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, ये गाड़ी ना प्रधानमंत्री जी की गाड़ी है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। बोले आप ऐसे मत कहिए, ये लीजिए चालान, मैं आपको वार्निंग करता हूं, नहीं तो मैं कुंडा लगाऊंगा क्रेन का और मैं इसको हटा दूंगा। तो उसने नहीं बाज आया, वो सोचा कि कौन कहता है, हिम्मत थी। तो उसने क्या किया, उसने कुंडा लगाया और हटा दिया उसने, और मुझे वायरलेस करा कि हमने ये गाड़ी लगाई, ये नंबर है उसका, ये प्रधानमंत्री जी की गाड़ी निकली। तो मैंने कहा यही तो हमारी पॉलिसी है, ना ऊपर ना नीचे, बराबर, सब बराबर। उसको चालान का, उसको बोल पैसा भरे, फाइन, टू पे द फी, उसने पे फी कराई फी। सो दैट इज हाउ इट वाज कनॉट प्लेस, मीडिया की जगह थी, उसकी खूब खबर फैल गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरा काम, मेरे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का काम आसान हो गया। कि वो ना चालान फटे, ना चालान कैंसिल हुए। सो हमने अपना, और क्रेन तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से ले ली थी। हमारे पास क्रेन सरकारी एक भी नहीं थी, ये सारी प्राइवेट क्रेनें थी। हमारी सरकार के पास कोई क्रेन नहीं थी उन दिनों में, सारी प्राइवेट क्रेनें लगा दी, 16 क्रेनें। और उनको ये कहा था तुम क्रेन वही गाड़ी उठाओगे जो हम कहेंगे, पुलिस कहेगी, ये नहीं सब तुम पैसे बनाने आ रहे, ये पैसा नहीं तुम बनाओगे, तुम एनफोर्समेंट करोगे, लेकिन तुम भूखे नहीं जाओगे। हमने यहाँ प्रॉफिट नहीं बनाना, हमने काम करना है। उन्होंने भी हमारी बात सुनी, तो हमने उसको फिर, इसीलिए आपको बहुत सारी क्रेन्स नजर आने लगी। उसके ऊपर माइक लग गया, माइक लगाया, और पहले लोगों को वार्न भी किया कि क्रेन आ रही है, गाड़ी हटा लो वरना ले जाएंगे। तो कई बड़े ढीठ लोग थे, वो पता क्या करते थे, ड्राइवर बैठा रहता, अब कैसे हटाओगे? तो कईयों ने तो ड्राइवर के समेत गाड़ी Okay, ma'am, but let's be honest, ma'am. These are like, and I know you had to go through some backlash as well because of this, wherein these people. But, ma'am, ये sense of morality, जिसकी आपने बात करी, नहीं सब समान है. Because you also didn't spare, if I'm correct, you also didn't spare your sister-in-law. Correct. And your yoga instructor for that matter. Correct. I did not spare her also. Yeah. Ma'am, this sense of morality, मैम ये आपके अंदर अभी तो नहीं हुई होगी, मतलब उस टाइम पे, ये तो बचपन से ही एनग्रेव हुई होगी. That's right. तो मैम ये कैसे आती है, this sense, so hard sense of morality? ये पेरेंट्स से आती है, स्कूल से आती है, अपब्रिंगिंग से आती है, संस्कारों से आती है, सोच से आती है। घर का वातावरण अगर ऐसा अच्छा होता है तो जरूर आती है। आपके आसपास के, आपके पेरेंट्स से आती है। अगर मैं कहूं और कोई नहीं, सवाए पेरेंट्स से, और फिर स्कूल भी रीइंफोर्स करता है। लेकिन स्कूल रीइंफोर्स करे या ना करे, तो भी आपके पेरेंट्स से आती है। अगर आपका पेरेंट्स के साथ कंट्रीब्यूशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंशियल है, वो खुद भी ऐसा ही करते हैं जो आपको समझा रहे हैं, उसका असर ज्यादा होता है। और मैम जो बोलते हैं सोसाइटी का, या अब मैं बिकॉज उस समय को अगर इस समय से कंपेयर करूं, राइट, जैसे हम मीडिया में इतना सब कुछ देखते हैं, एंड सोशल मीडिया, अभी आपको पता है वो, आई मीन सो मच इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया. So now how one should maintain its sense of morality as a kid, if I'm asking? All the more reason for the homes. In fact, होम के लिए चैलेंज बढ़ गया है। हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शंस आपके बच्चों में है इस वक्त, वो हमारे पास नहीं थी। हमारे पास वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, टेम्पटेशंस नहीं थी। सो ना टेम्पटेशंस थी, ना डिस्ट्रैक्शंस थी। अभी टेम्पटेशंस भी हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस बिकम टेम्पटेशंस। इसलिए द होम एंड द स्कूल रोल इज इवन स्ट्रॉन्गर to continue to reinforce value education from childhood.
और उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता, ना माँ बाप, ना घरों में टाइम कम हो गया, स्कूलों में भी कम हो गया, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे इम्तिहान है, रोट लर्निंग करो फटाफट रट्टा, लेकिन नॉलेज नहीं. सी वी आर नॉट एजुकेटिंग फॉर नॉलेज, वी आर एजुकेटिंग टू पास एन एग्जामिनेशन, टू गेट माई मार्क्स, असेंबली लाइन. वही असेंबली लाइन बनाया हुआ है कि बच्चा यहाँ से घुसेगा, इंजीनियर बनेगा और वो बनेगा, चलो आगे. उसको इंसानियत नहीं सिखा रहे हम. अगर हम अपनी छोटी उम्र में बच्चे को इंसानियत सिखा दें, वो आगे सफल इंसान बनेगा. लेकिन हम इंसानियत नहीं सिखा रहे. हमको बहुत इंसानियत सिखाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, कमी में रहना, राइट, थर्ड क्लास ट्रैवल करना, पैसा ईमानदारी से खर्चा करना, पॉकेट मनी या फालतू नहीं मांगनी अपने मामा डैडी से, सादा खाना खाना, डिमांडिंग नहीं होना, यू नो दीज आर वैल्यूज. और फिर गुरुद्वारे भी जाना, मंदिर भी जाना, सब जगह कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी, सभी चीजों के लिए एक कॉमन प्रेयर थी कि सबका भला हो, सबका भला हो. सो आई थिंक दीज संस्कार्स केम फ्रॉम स्कूल एंड होम्स, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर होम. अगर हम सोचे तो कोई और बच्चे को पढ़ा देगा, हम लोग आउटसोर्स नहीं कर सकते, वैल्यू एजुकेशन आउटसोर्स नहीं कर सकते. या बोर्डिंग स्कूल में चले गए बच्चे, तो बोर्डिंग स्कूल तो बन सकता है ना ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग. तो अब बोर्डिंग स्कूल का वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. दैट इज द पॉइंट. Right. All right. Moving on to our next child. I have Saki Devan from Modern Public School. Saki, over to you. Thank you so much, sir, and thank you, ma'am. I would like to mention that I do have humanities, and I'm aiming to enter into civil services someday, hopefully. And ma'am, you are a great inspiration to me. So my question to you is that what is your mantra to succeed in life, and what advice would you like to give for a better and more successful life? See, मैंने आपको बुनियाद बता दी. What is the secret of a tree bearing good fruit? Roots. No, roots, correct. It's roots, but more than the roots, it's the gardener. Gardener. Yeah. And then gardener when he seeds it, उसको क्या करता है, पहले गार्डनर उसको प्रोटेक्ट करता है और पेड़ बढ़ता है, फिर वो जो पेड़ है उसको खाद ठीक देता है, ठीक है. सो गार्डनर प्लेज अ रोल एंड योर पेरेंट्स आर योर गार्डनर्स, टीचर्स आर योर गार्डनर्स. आफ्टर दिस ट्री ग्रोज एंड इट स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस and it then looks for its own nutrition by itself. अब गार्डनर तो नहीं ना रूट्स अपरूट करके देखता कि वो पानी की तरफ जा रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन की. Then the tree itself starts looking for its own nutrition. The gardener then recedes. Parents grow old. Parents, teachers, you have outgrown from school now to college. So it is the onus then is on you. But if the tree has been planted properly and has had a real nice sapling protection, then the onus, then will you ask the tree, why do you bear such good fruits? No, because the tree is like that. When the tree grows up strongly, nutritionally, it will bear fruits. And even if somebody plucks those fruits, the tree will continue to bear fruits. उसकी आदत ही होगी अच्छा फ्रूट देने की, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर क्या करेगी वो ट्री, ऐसे बनेगी कि ऐसे सीड्स भी देगी, जो कहीं और सीड लगाओगे वैसा बनेगी. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. इन ह्यूमन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर उसकी ग्रोथ अच्छी, बच्चे की बुनियाद अच्छी बन गई, उसने फिर अपने आप भी ध्यान रखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद ध्यान रखते रहे, ध्यान हटाना नहीं, बल्कि नई चीज ऐड करते रहना, सीखते रहना, और ताकि मेरा फ्रूट स्वीट हो. राइट, फ्रूट तो मुझे देना है, लेकिन मेरा फ्रूट स्वीट रहे, आई मस्ट कंटिन्यू टू वॉच. दैट मीन्स आई गेट इनटू प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अलर्टनेस. Every day you can't skip your if you want your food every day, you have to be fit to eat. If you want your mind to be a piece, then you must learn to handle your mind, isn't it? So then you want to learn more, you will add reading to your daily schedule,
right? You want to achieve more, you will manage your time better. You will not waste it in useless friends and gossips. You will not backbite. You will not steal. You will not do, and you will not tell lies. See, all this becomes a structure, and this becomes your character. So once your character is born, habits are natural. जो लैंग्वेज आपको अब आती वही बोलोगे ना. अब मुझे फ्रेंच नहीं आती, मैं बोलूंगी, मैं नहीं फ्रेंच बोल सकती. This is my language, is my habit, is my character. This language is your character, which comes out naturally in trying circumstances. Trying circumstances may be you will stand still. Your composure will not go. You will stand still. You will strong, and you must continue to learn to ward off wrong influences. You have to protect yourself, cleanse yourself before you sleep. When we brush our teeth, we comb our hair. We must clean our head before we sleep. When we comb our hair, we must clean our head. The combing is a cleaning, it's decluttering. It's a declutter. So I think these are habits. Even then a mistake can happen. It will happen, can happen. Certain tragedies in life will come when you won't know how to handle. But your consistency will help you. Right. You may not be wearing clothes of a monk, but inside you, you will be clean. You will be pure. You will be spiritual. You will be spiritually strong. And you will know the emotional connect. You will know how to handle your emotions. You will cry. You will laugh. You will feel sad. You will be, but you won't get collapse. You will not collapse. You will keep standing up. Why? Because you learned it as you grown yourself. I've seen in Pondicherry, when I was living in Rajnivas there last few years, do you know when we had a Nivar cyclone, there were many tall trees. They were called the palm trees. I noticed this strong hurricane, I could 90, 100 kilometers per hour. Lekin the tree stood straight like this. Uski sirf leaves घूमी, वो straight रही. वो ये हिली नहीं, tree trunk नहीं, ये हिलता रहा, ये नहीं हिला. Reason था क्योंकि वो बड़ा deep था. उसकी roots बहुत deep थी. वो नहीं गिरा. मैम वो टूटा नहीं. ना, वो नहीं टूटा. Usually तो मैम बोलते नहीं है the tree if it bends with the वो. नहीं वो leaves सॉरी, उसकी leaves जो थी वो हिलती रही. लेकिन वो खड़ा रहा. This is the strength of that palm tree. I saw it at midnight. मैंने सोचा इतना जोर आ रहा है, क्या होगा? मैंने अपनी पेड़ जाके देखे, इतना टॉल. मैंने ये देखा हिल भी नहीं रहा, सिर्फ ये हिल रहा बहुत खूब. ये संभाल रहा है, ये नहीं संभाल. So why? The reason why it was almost 100-year-old tree, 150-year-old tree. The deep, it was very, very deep, strong. That is the secret. So the deeper our value system is, more convinced we are about it, and we keep reminding ourselves of it, the stronger will be our responses. Cleaner will be our responses. Right. Over to you, Rajiv. One question from the live chat. Yes, sir. Sir, there is a question from Ashutosh. Like, how can I develop the ability of perseverance in my life? I have this question because whenever I start doing work, I didn't be able to stick to it. ये तो मैम बहुतों के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम है. दिमाग कैसे लगाए उस काम में? इसको कहते हैं डिसिप्लिन. मुझे याद है छोटी उम्र में हम लोग, मैं और मेरी छोटी बहन, मैं खूब पढ़ती थी अपने आप. मेरी बहन उठ के भाग जाती थी. मेरे पापा ने उसको रस्सी के साथ बांधा, कुर्सी के साथ, क्योंकि टीचर आ रहा है, ट्यूशन वाला. अब वो भगा जाती थी. ट्यूशन वाला टीचर वेट कर रहा है कि पढ़ो, और वो भाग रही है. पापा ने उसको रस्सी से क्यों बांधा? बिकॉज वो उसके पास वो परसिवरेंस नहीं थी, उसकी अटेंशन स्पैन लो था. राइट? तो पापा ने, सो कई बार हमको अपने आप रस्सी बांधनी पड़ेगी. इसमें तो डैडी ने बांधी. अब तुम किसी को, बच्चे को रस्सी बांध सकते हो? पुलिस आ जाएगी. सो आपको खुद अपनी रस्सी बनानी पड़ेगी, अपनी ग्लू खुद लानी पड़ेगी. Nobody else can hold you back. Now there isn't a situation where you tell your mummy, I'm sitting in the chair, you stand up and keep holding me so that I don't get up. That's not the choice anymore. You must take responsibility for what you want.
मैं चाहता हूं परसिवियरेंस, लेकिन मेरा ना मन नहीं लगता। तो पहले मन लगाओ ना, क्यों मन लगे? व्हाट यू वांट, जितना चाहोगे वो ही करोगे। अगर आपको चाहते हो मैं दोस्त के जाऊं भाग जाऊं, कभी कुछ खाने जाऊं, पिक्चर जाऊं, या मैं पिकनिक जाऊं, तो फिर परसिवियरेंस कैसे आएगी? आप वही करोगे जो आपका मन कर रहा है। सो मन को काबू करो, मन को वॉच करो। इसलिए छोटी उम्र में हमको योगा और मेडिटेशन काश सिखाते। अगर स्कूलों में छोटी उम्र में स्कूल और मेडिटेशन सिखा दें, जैसे बच्चों में जो ये जो उथल पुथल रहती है, दे विल लर्न टू स्टेबलाइज। So what if we, all of us in our schools, what if I in our school start with a prayer, assembly prayer, yes. Now children sit down. All of you sit down, be quiet, shut your eyes, and just do your internal prayer. Settle down a little. 15 minutes, settle down. Once you learn to start settling down as a child, because you're very fidgety, you will see in a month or two the change comes. That fidget goes. That's where you will start learning to stabilize, to become in control of yourself. और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो. Without that कोई और तरीका नहीं है. But see, it costs nothing. This costs nothing. You don't need more teachers. You don't need more departments. Even sitting on the chair can also happen. फिर बच्चों को ये होमवर्क भी दिया जा सकता है कि सोने से पहले प्रेयर करो, ग्रेटफुल बनो, और फिर से 10 मिनट क्वाइटली अपने आप को वॉच करो, फिर सोना. You will see many children. Some can chant. Some can say, "All right, I want to chant." Okay, you chant. So somebody may sit a prayer, do a prayer, whatever. But I think there are ways to bring stability, perseverance, concentration, focus. So many things which we are distracted. और उस वक्त कोई फोन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कुछ नहीं. Just so that. Or while before you sleep, you read your own little scripture. Whatever you want to read, scripture करते करते बंद करो, फिर सो जाओ. These are the things which we can do. All right. Moving forward, I have Paul Jason. Paul, your question would be? Ma'am, my question is, what is the most challenging aspect when there is a change from an IPS officer to a lieutenant governor? I think it was a very beautiful growth, because in the IPS officer, I was in charge of departments. You see, like for instance, IG prison, Director General of Police. So I had these departments, but it was very police related, right? Lieutenant Governor of Puducherry meant police included. I had education, I had health, all departments of the government. All departments of the government were under one common administration, which was the Lieutenant Governor's office. Lieutenant Governor's office was an administrator of all departments in charge. So police was included. So it was a larger canvas. So police now was one of the canvas, but this was large administration of the union territory, which was very, very nice. Right. It was very, very rewarding. You must read this book, which you were being explained to. If you can download it, you can Fearless go to the Governance, right? and go and see it. Fearless Governance. Ma'am, I will. And I'll All my stories. You know, the chapters are not big. It is about, it's few chapters. You can read a chapter, half a chapter. It's about 3 pages of the chapter. That's all. और उसमें ना QR code भी है. So if you, after the chapter, you want to see a video of it, wow. You go to the QR code, click, That's right. and you'll see the QR code. You'll see videos also. Right. Guys who are watching us on YouTube, यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे fearless governance की बुक लिखी आप देख रहे होगे. ये मैम की वेबसाइट पे अवेलेबल है. इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मैम वेबसाइट का नाम एक बार बता दीजिए दोबारा से. KiranBedi.com से. KiranBedi.com. हाँ, मैम के हाथ में भी है. मैम एक बार दिखा दीजिए दोबारा से. This is the book. Right. And you see, this has pictures and it has QR codes. See this? It's got lots of pictures. And more if you want to see video, you want to see. See this? So this all for, and these are all stories. One story at a time. And just 2.5 pages, 1 page.
how I began, ये सब कुछ है इसमें. You will love reading it. It's not only for elders, it's for children, teenagers. It's very useful. See this? Got so many pictures. See this? It's color. And in the website, the QR code is all in color. You will love it. Right. Just enjoy reading. Yeah. So it's a humble request, guys. Please do download the book because इसमें मैम की कहानी या किस्से नहीं है, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वो सबसे बड़ी बात है. You know, and हम मैम की कहानी हर किसी को पता है, but to be very honest, हम उससे ज्ञान कितना ले सकते हैं, and how can her journey be useful to us? So that's the most important part. So please visit the website, download the book. All right, moving on to my next student, Pavanpreet. Could you please ask your question very quickly? Good evening, ma'am. Good evening, Pavan. I'm Pavanpreet from 8th standard of the Oxford School of Education, District Bathinda. And ma'am, you are an idol for almost every woman in India. And sometimes if we feel like we should quit and give up our goal. In that situation, how do you keep yourself consistent and motivated towards your goal? It's, again, when I told you, you must start being with yourself. Ask yourself, why are you quitting? Why don't, that means your goal is not interesting. You see, what is your goal? I want to be an athlete, but I don't want to work hard. That means your goal is not in consonance with your thinking. Or you want to be an athlete, you want to win a race, then you have to practice. Then you do small steps every day. But if you want to quit, then you are not wanting your goal. That means there's no clarity in what you want. It's not a goal. It's not a goal. It's a desire. It's your wish. It's a dream. And you wake up and the dream is over. Yours is a dream. It's your wish. It's not your goal. Because if there's a goal, then you want it. You must ask yourself, how much I want it. Am I really hungry for it? Or am I just wanting? Because मेरी friend है तो मेरा वो देखो वो कितनी first आ रही है, मैं नहीं first आ रही, मेरा goal भी है first आना. तो उनको पता है कि वो क्या करती है first आने के लिए? वो पढ़ती ज्यादा है, बैठ के concentrate करती है, revision करती है, अपना test लेती है, ज्यादा बुक्स पढ़ती है. तो मैं उसके साथ उसके जैसा बनना चाहती हूँ, तो फिर उसके जैसे करो ना. लेकिन मेरा गोल, तो गोल नहीं है वो आपका, फिर डोंट कॉल इट योर गोल. इट्स योर विश. Wish to be converted into goal means a method, a journey, a ladder, a steps. One by one you reach the goal. अगर मैंने जाना है ऊपर एवरेस्ट पे या किसी हिल पे, तो मुझे रोज थोड़ा थोड़ा करके जाना पड़ेगा. मैं नीचे से देखूं, मेरा गोल है ना वहां पर पहुंचना, लेकिन मुझे मैं ऊपर कैसे जाऊं? तो गोल नहीं है, वो आपकी विश है. Understand the difference between a wish and a goal. Understand that? Goal means every day you will be going towards it. वो गोल कर रोज जाओगे, रोज जा और जाकर पहुंच जाओगे. फिर कहोगे अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ये तो मैंने अचीव कर लिया. सो गोल इज अ डेस्टिनेशन. लेकिन उधर चाहो तो सही ना. मेरे गोल है कश्मीर जाना, लेकिन टिकट ले रहे हो तुम काठमांडू की, तो कैसे जाओगे कश्मीर? तो आप टिकट भी वही लोगे जो आपको कश्मीर ले जाएगी, ना कि काठमांडू. सो वो है डिजायर. सो अंडरस्टैंड, मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है, लेकिन ना, तो फिर दिल कर रहा है ना, लेकिन कर क्या रहे हो वो देखो ना. सो वही. और कई बार गोल छोटा बनाओ ताकि छोटा छोटा अचीव करो. जरूरी तो मैंने माउंट एवरेस्ट ही जाना है, मैंने ना इतना कर लो आज, ये छोटा छोटा का. जब छोटा छोटा करते जाते हो तो जर्नी पास हो जाती है. लेकिन आप पहले से इतना बड़ा कर लो कि मुझे ये करना है, तो वो पहले से खुश हो जाओगे और ये बहुत मुश्किल है. गो स्मॉल. आज मैंने छोटा ये करना है, फिर मैंने ये छोटा ये करना. तो पीछे मुड़ के देखो, जब मैं बुक लिखने लगी थी तो मैंने चैप्टर्स लिखे इतने सारे. मैंने सोचा हाय मैं कैसे करूंगी, इतना सारा लिखाऊंगी कैसे. मैंने चैप्टर्स तो बना लिए, फिर रोज फैसला कर लिया कि अच्छा एक हफ्ते में ना मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी. सारे चैप्टर तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हर दिन हफ्ते में एक तो कर सकती हूँ. तो मैंने अपने गोल को क्या किया,
लंबा था बुक लिखनी, लेकिन मेथोडोलॉजी को छोटा कर लिया और मैंने एक एक हफ्ते में एक तो जो भी मेरा काम था उस एक चैप्टर लिखने के लिए मैं वो एक हफ्ते में, तो जब मेरा एक हफ्ते में एक होने लगा फिर मैं एक करने लगी, वो होने लगे। फिर मुझे बड़ी खुशी होने लगी, मैंने 10 चैप्टर लिख लिए, मैंने 20 चैप्टर लिख लिए, तब तो कोई रोकने का मतलब ही नहीं था, तब तो मेरी रेस भाग रही थी। सो आई स्टार्टेड विद चैप्टर 1 चैप्टर, सो एक एक करके हाफ चैप्टर रिसर्च करके, ताकि मैं उतना ही कर लूं जो मेरा आज का काम। तो वो धीरे धीरे होते देखो लिखा गया, नहीं तो मैं अगर पहले से ही कहती अरे 60 चैप्टर इतना कुछ मैं कैसे लिखूंगी, तो मैं घर घिस जाती। मेरी डिजायर थी बुक लिखूं, लेकिन मेरी वांट थी, मेरा गोल था। मैंने कहा हाँ मुझे वांट है, मेरा गोल भी है, तो फिर मैं क्या कहां से शुरू करूं, पहले चैप्टर से। सो आई स्टार्टेड, दैट्स द वे यू डू। Right. Wonderfully said and wonderfully mentioned. All right. Tanishka has a very interesting question, ma'am, about financial independence. Tanishka, over to you. Hello, ma'am. As you already told us that you want to become an independent woman. So I just want to know that what is financial independence according to you? And I also want to know that is it important for the women of today's world? So please. उसके पास मुझे बताओ तनिष्का, जब आप दूसरे से मांग के खाओगे तो इंडिपेंडेंस हो सकती है, और कुछ से मांगना है तो कुछ चीज की कीमत होती है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो अगर आप किसी से मांगोगे, देखो अपनी मम्मी डैडी से सिर्फ मांग सकते और किसी से नहीं। अगर मांगना है ना सिर्फ मम्मी डैडी से और बाहर से किसी से नहीं, और उसके लिए तो कमाना है ना। तो अगर आप बाहर से भी दूसरों से फ्रेंड से मांगने लग जाओगे तो तुम फ्रेंड एक दिन कहेगी अरे बड़ा मैंने दिया, अब तू मेरे लिए कर, मैंने तुझे पैसे दिए तू मेरे कर। तुम्हारी इंडिपेंडेंस है क्या? आपने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी। अब शादी हो जाती है हस्बैंड वाइफ की, बेचारी वाइफ जो है बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से चाहती है कि मुझे दे, पॉकेट मनी दे, या मुझे कुछ खरीदना है। तो मान लो हस्बैंड कहते नहीं खरीदने की जरूरत, कोई ज्यादा नहीं जरूरत है, उसकी इंडिपेंडेंस वो तो रुस जाएगी कि देखो मुझे, मैंने कहा था मुझे नहीं दिया। तो अगर मान लो उसके पास अपना पैसा होता हो तो अपनी मर्जी से जाके खरीद सकती। तो इंडिपेंडेंट कहाँ है? पहले में वो डिपेंडेंट है, दूसरे में वो इंडिपेंडेंट है। सपोजिंग वो अपने भाई के लिए प्रेजेंट ले जाना चाहती है, और वो क्या से, अगर उसके पास पैसा होगा, पैसा लेगी बैंक से, अपने भाई को अपना गिफ्ट दे देगी, राखी का गिफ्ट दे देगी। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो किसी रिश्तेदार से मांगेगी या अपने हस्बैंड से मांगेगी। तो मान लीजिए हस्बैंड कहता नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास नहीं है, वो प्रेजेंट भी नहीं दे सकी, वो फुस हो जाएगी, रोएगी, हाँ मैं अपने भाई को प्रेजेंट नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से क्या है, वो अपनी मर्जी से काम, अपनी इच्छा पूरी कर सकती है या अपनी जरूरत भी पूरी कर सकती है। लेकिन अगर पास पैसा ही नहीं है तो अपनी जरूरत भी नहीं पूरी कर सकेगी। इसलिए हर लड़की को, जैसे हर लड़के को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, ऐसे ही लड़की के लिए भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है। अपना पैसा खर्चा, उसके अपना खर्चा क्यों, फैमिली के लिए भी सपोर्ट करे, क्यों नहीं करे? जैसे लड़का करता है, खुद भी कमाता है, फैमिली को भी चलाता है, लड़की भी खुद कमाए, घर भी चलाए, अपना जिंदगी, अपने मम्मी डैडी की भी हेल्प करे अगर जरूरत पड़े तो। क्यों? वो किसी से कम थोड़ी है। लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़की भी काम करे, वो क्यों नहीं कमा के अपने अगर मम्मी डैडी को जरूरत है क्यों ना दे? क्यों? वो किसी से कम है क्या? नहीं। मगर तो ही वह कर सकेगी ना, अगर खुद इंडिपेंडेंट होगी तो ही ना, नहीं तो कैसे करेगी? ये थोड़ी कह सकती अपने हस्बैंड को मुझे पैसे दो, मैंने अपने डैडी को देना है, वो दे देगा, बड़ा अच्छा इंसान होगा, कह देगा नहीं देना, क्यों दूं मैं तेरे डैडी को? तो फिर क्या करेगी? वो तो बल्कि जब इंडिपेंडेंट होती है तो दूसरों की मदद तो ही कर सकेगी अगर खुद उसके पास कुछ है, पैसा कुछ है। तो पैसा नहीं है तो वो मांगेगी तो हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकती। राइट, ठीक है। ओके मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, इफ यू मे अलाउ।
मैम नॉर्मली हमारी सोसाइटी का एक पार्ट होता है which normal people we tend to forget, and you were DG presence or IG presence, right? Delhi Police IG presence. मैम उस पे you won Revom Magazine Award for the work that you did over there. मैम what inspired you? Because वो सेक्ट जो हमारा क्रिमिनल्स और उनका सेक्ट है, नॉर्मल हम लोग बात नहीं करते हैं उस बारे में, बट यू अगेन वेंट एंड मेड रिफॉर्म्स इन द इंटायर प्रोग्राम. सो मैम what inspired you? And देखो, मैं जब भी मुझे कोई काम मिलता है, ये मेरी एक अच्छी आदत है, तुम्हारी भी आदत हो सकती है. आपको क्लास मिलता है या सब्जेक्ट मिलता है, कोई लक्ष्य मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है, मान लो जैसे मुझे जिम्मेवारी मिली टू बी आईजी प्रेजेंट, तो मैं वहां जाकर ये अपने मन में सोचा, अपने आप से पूछा कि ये जिम्मेवारी में मेरा मतलब क्या है. एक है मतलब कि चलो नौकरी मिल गई, तनख्वाह मिलेगी, जो कर सकते करो. हाँ, ये एक मतलब है कि यहां से कोई भागे नहीं. एक मतलब है कि जेल से कोई भागे नहीं. जैस्मीन सिक्योरिटी मैं खूब बढ़ाऊं ताकि कोई भागे नहीं, तो बड़ी कामयाबी, क्योंकि जेल का मतलब है कोई भागे नहीं, राइट? तो मैंने ये सोचा मेरे काम दो हैं, एक नहीं है. एक है यहां से कोई भागे नहीं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये जब कोई यहां से जाए वो वापस नहीं आए. अगर वापस नहीं आए के लिए मतलब क्या है? कैसे नहीं वापस आएगा? दरवाजा थोड़ी बंद रहेगा, वो तो अगर चोरी करेगा दोबारा आएगा. मैंने कहा नहीं, हम अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सुधारेंगे, स्वच्छता देंगे, मूल्य देंगे, ताकि वो बदल के जाए, यहां से सोच बदल के जाए, वो ये तय करके जाए अब मैं ये आया हूं, वापस नहीं आऊंगा. तो हमने स्लोगन शुरू किया था, यहां से जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा. हम रोज प्रार्थना में बोलते थे, दो स्लोगन बोलते थे, यहां से जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, खुश रहूंगा खुशियां बांटूंगा. अब मुझे बताओ, ये दो स्लोगन करने के बाद वो आएगा दोबारा? प्रार्थना करते थे, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो करम, रोज शाम को प्रार्थना करते थे. उसके बाद ये स्लोगन से बंद करते थे. सो उसके लिए सिर्फ स्लोगन नहीं था, सुबह वो पढ़ते थे, 9 से 11 रोज पढ़ाई होती थी उनकी, स्कूलों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की पढ़ाई, बूढ़ों की पढ़ाई, और प्रिजनर्स में से टीचर बन गए थे, क्योंकि कोई बीए आया है, कोई एमए करके आया है. अब समाज है ना, उनको हमने टीचर्स बनाया, बाकियों की क्लासेस लगाई, जो अनपढ़ थे उनकी क्लास 1 बनाया, कोई प्राइमरी स्कूल बनाया, उनकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस के अनुसार हमने उनकी क्लासेस बनाई, फिर हमने उन्हीं को टीचर बनाया, और बुक्स की डोनेशन मांगी आप लोगों के से, यूज स्कूल बुक्स मांगी. तो ऐसे हमने पढ़ा, जब अंदर से कभी पढ़ रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी सीख रहे हैं. इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी आ गई, नेशनल ओपन स्कूल भी आ गया, कंप्यूटर सेंटर भी खुल गया, फेस्टिवल वाले भी आ गए, ब्रह्म कुमारी भी आ गई, आर्ट ऑफ लिविंग, सारे शाम को प्रवचन कर रहे हैं. तो उनकी क्या हुआ? उनकी सोच बदलने लगी. तो मैंने ये सोचा, ये मुझे किसी ने कहा नहीं था करने को, मैंने अपने आप से सोचा कि मेरा काम यहां है क्या सिर्फ एक गार्ड बनना या गार्डियन भी बनना? जो मैंने गार्ड का भी काम किया और गार्डियन का भी काम किया. सो वो जब गार्डियन का काम हम करा तो वो फैल गया बड़ा, क्योंकि प्रिजन से रोज 500 लोग वापस भी जाते थे. वो जाके बाहर समाज में बोलते थे अब तो पढ़ के आए, हमको लिख के आए. वो बैग भी लेके जाते थे, जो डोनेटेड बैग्स होते थे, दिखाते थे अपने बच्चों को, मैं देखो पढ़ के आया. अंगूठा लगा के आते थे, नाम लिख के जाते थे, अंगूठा लगा के आते थे, और वो बाहर जाने वक्त नाम लिख के जाते थे. तो वो बैग भी ले जाते थे दिखाने के लिए कि मैं पढ़ के आया हूं, मेरे पे विश्वास करो, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा. सो जब ये ऐसा काम फैला, बहुत लोगों में फैला, क्योंकि रोज 500 लोग बाहर जा रहे हैं, 500 लोग जाके बोलते थे अंदर से ये हो रहा, अंदर ये हो रहा. कोई नशा नहीं बेच रहा, अंदर नशा बंद कर दिया, बीड़ी बंद हमने बंद कर दी, स्मोकिंग बंद कर दी. सो सुधार होने लगा जब, तो अपने आप नजर आने लगा समाज को.
मीडिया ने भी लिखा उसके बारे में, क्योंकि मीडिया आफ्टर ऑल हिस्सेदार है ना, 500 लोग रोज बोलते जा रहे हैं कोई ना कोई, तो अपने आप न्यूज आ, फिर मीडिया आने भी लगा, पूछने भी लगा मुझसे। जब मेरे से पूछने लगा मैंने उनको दिखाया कि देखो मेडिटेशन हो रही है, देखो क्लासेस लगी हुई है, देखो प्रवचन हो रहा है, देखो इंदिरा गांधी क्लास लगी है, देखो ये देखो कंप्यूटर क्लास है, देखो सारे देखने लगे, फेस्टिवल आने लगे, वो पब्लिक बोलने। सो जब बहुत सारा योगा होने लगा, कूड़े को खाद बनाया, कूड़े को खाद, टन्स ऑफ गार्बेज वाज मेड इनटू मैन्योर। वेस्ट मैनेजमेंट तो हमने 93 में शुरू कर दी थी। सो ऐसी चीजें, ये भी बुक लिखी हुई है बाय द वे, इट्स कॉल्ड इट्स ऑलवेज पॉसिबल। ओके मैम, उसके बाद चलो मैं अपने बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरी बातें तो मैम आए बिकॉज वो चलती रहेंगी। देन आई हैव सुखमनप्रीत। Hi, good evening, ma'am. Yes, Sukhman. Ma'am, so basically we've heard that you've learned so many qualities in your childhood and they've helped you a lot. So can you please particularly tell that what qualities have helped you contribute to the society to such a great extent? It was a quality of personal discipline. I was a very disciplined person. जो मुझे करना है वही पहले करना है, कुछ चीज दूसरी नहीं। मैं दूसरी तरफ नहीं जाती थी। अगर मुझे पढ़ना है तो उस वक्त मैंने पढ़ना है, और उस वक्त मैंने खेलना है तो मुझे खेलना है। सो जो मुझे जिस चीज का टाइम होता था मैं वही करती थी, मैं मिक्स नहीं करती थी। आई थिंक इट वाज अ हैबिट ऑफ पर्सनल डिसिप्लिन एंड देन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। Two things: personal discipline and hard work. Right. Ma'am, like you said, you were a guard as well as a guardian. And you know what? You're one of those people, and you're one of very few people who always has given that vibe that you are a mentor and a mama as well. So, for example, I hope you can understand what I mean. That आप डांट भी लगा दोगे, but then you'll always protect. And it's not only me, as a citizen of India, कि आप सबको प्रोटेक्ट भी करके चलोगे, बट हाँ जहां पे कोई गलती करेगा आप डंडा भी जरूर दिखाओगे। सो यू हैव ऑलवेज गिवन दैट वाइब। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नव्या। Thank you, sir. Good evening, And ma'am. it's a very deep question which Navya is going to ask, so I hope you're ready for it. Well, India has always been a patriarchal society, right? And I would like to know if you think it is still a patriarchal society, and how did you manage to create space for yourself here in such a male-dominant world, in India, like in a male-dominant country per se? Well, when I was growing up, it was with the help of my parents. When I was growing up, my parents were helping me clarity. What am I going? Why? How different it is to be a girl in a male society. They were educating me. It's a very important role parents play, teachers play, but in my case, parents played a very important role. They explained to me what is an empowered girl and how do you deal with these situations. समझाते थे, पढ़ाते थे, उसके बाद मैं करती थी। लेकिन मेरा लक्ष्य ये से था कि मैंने कमजोर नहीं होना, मैंने मार खा के घर नहीं आना, मैंने हार के घर नहीं आना। मैं ये लड़की कम नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं। So I was so strong in my mind कि मैंने हारना नहीं है। See, I'm sorry, is this place still male dominant according to your perception? Yes, it is. It is male dominant still. It's still, because it's a strongly patriarchal society. It still is. Rural areas is completely patriarchal. Urban areas अपने तरीके की कंट्रोल है। तो 100% इसमें तो लड़की वही बचेगी जिसके पेरेंट्स उसको घर उसको सिक्योर होगा। अगर घर ही नहीं उसको सिक्योर, घर ही में ही नहीं उसको ताकत दे रहे हैं, तो वो कैसे बहादुर बनेगी। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को अभी भी माँ बाप कह देते हैं, अरे इस पर खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये तो चली जाना है, या पैसे कम है तो लड़के को पढ़ा देंगे, लड़की को कम पढ़ाएंगे। ये मुझे पता है, ठीक है। और कई बारी उसको बेस्ट ऑफ क्वालिटी फूड भी नहीं देते।
उससे उसको घर का काम में उस पर देते हैं, लड़के को कहते हैं अरे तेरा भाई है. So it is even now it's happening. I am aware of that. So it is still a patriarchal society. The only way is homes. जब तक घर नहीं, देखो बाहर का नहीं कुछ, अगर घर में बेचारी लड़की ये समझेगी अरे इसने तो चले जाना है, ये तो हमारे लिए खर्चा है, राइट, और ये तो हमारा नाम भी नहीं आगे ले जाएगी, वंश भी नहीं चलाएगी, यहाँ ये काले रंग की है, गोरी नहीं है, राइट, तो ये तो हमारे लिए बोझा है, दोबारा नई लड़की एक और लड़की आ गई, तो ऐसे जब ताने सुनेगी तो उसका घर उसका नुकसान कर रहा है, सेल्फ स्टीम, उसकी सेल्फ स्टीम को तोड़ रहा है. बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अभी नन्ही बच्ची है, वो प्लांट ग्रो कर रही है, तो फ्रूट कैसा देगी फिर, क्योंकि उसका माली ही उसको खाद ठीक नहीं दे रहा, अडल्टरेटेड खाद दे रहा है, तो बेचारा फल कैसे मीठा होगा बताइए. Right. I have one more quick question. I'm sorry. Navya, you promised me only one question. Ma'am is... No, it's related. It's related. I'm really sorry. I have another program to do. Exactly. That's my point. I have another program. It's waiting, right? It's waiting. Yes. Please, it's waiting for me on the other computer because it's another webinar. All right, ma'am. So guys, that was ma'am. And thank you so much, ma'am, for giving us your valuable and precious time. I know few kids are still left who were supposed to ask ma'am certain question. Next time also, we'll try to work something out. अगर मैम जैसी फ्री होंगी, मैम को हम कोशिश करेंगे मैम से दोबारा मिलने की. But जाने से पहले make sure you go to the ma'am's website and download the book, because it will absolutely teach you a lot about perseverance, about women empowerment, about courage. Ma'am, any last words? I would just these children daily before sleeping, make your timetable for the next day, and every day rate yourself. How much did you achieve? Get into the timetable habit and say, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे करना है. Stick to the schedule. Then gradually move towards implementing that timetable. You will develop a wonderful disciplined habit of achieving more. And before you sleep, rate yourself. Every day rate. आज मेरा दिन में 5 out of 10. आज मेरे दिन में 7 out of 10. आज मेरे दिन में 0. लेकिन अगर आप तो naturally you don't. So maintain a little journal of your own. Make a little schedule and plan your day. And then every day move towards that. तो कुछ ना 0 से आप 5 तो जाओगे. धीरे धीरे 6 पे आ जाओगे. I would suggest whatever you want to achieve, whatever you want to be, उस जर्नी को सोचो, ड्रीम करो, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ रोज रोज, तो आप देखोगे आप उस जर्नी की तरफ उसी गाड़ी पे डब्बे में होगे जहां गाड़ी ले जानी है आपको. All right. Thank you so much, Kiran Bedi ma'am. It was a pleasure to have you here with us, and it was obviously an honor for me. Itne time baad, the life comes full circle. So thank you so much, ma'am. And So tell me 1 minute, what was this event about? Okay, go ahead. So this event was about where ma'am shared her journey of past 40 years. No, I want a child's feedback. Give me a child's feedback. Child. Let's say I'm recording it again. I want a feedback from these girls. Okay, children. Sir. It's my humble request. जो question नहीं पूछ पाए पहले वो start करें, please. नहीं, I just want a takeaway. What are your takeaways, please? Please give me your takeaways from this session. Ma'am, may I? Go ahead. What are your takeaways from this session? Ma'am, as you are my idol and I always get motivated from you because you broke all the patriarchal barriers in front of you. So what I take away was that we should be first concentrated on what we want to achieve, because if we are not concentrated, we can't make our plans. First, we need to set our mind. We need to listen to our heart that we need to achieve something, because if we listen to our minds, then we always just waste the time, just get into Insta, just do this. Navya, what's your feedback? Navya. I've learned a lot from you, and I've learned that it's important to maintain yourself. You cannot just work at one thing and expect to get the results. You need to look after all the aspects of your life. Good. And Saki, what's your feedback? What's your takeaway?
So my takeaway would be that we should not think that we're less than anybody else, and we should always take care of ourselves. Okay, Gauri, yours? Ma'am, my takeaway is that we should be independent and be our own leaders, and we should keep on moving towards a goal. And what we desire is a wish and not what we want to achieve. So we should be able to differentiate between them. And And Pavan, we should have. okay, short word, one-liners. Pavanpreet? My takeaway is that if we are independent, so we can give to others. Yeah, good. Sukhman? Ma'am, I would say that self-discipline will bring all of these qualities with it. Okay, Dia? Our family plays a very important role in our upbringing and our moral values, and we should pay attention to it. Getting them right. Yeah. Dhruvit, what's your takeaway? I take away that the difference between wish and goal and the value of independence. Okay, Nandini? My takeaway is self-discipline is very important. Yeah. Okay, and Gauri? Ma'am, we should have a positive approach towards fitness and the difference between the wish and desire I told you. Okay, good. Paul? Where's Paul gone? Paul disappeared. Nanika, you want to say something? Anybody else want to say anything? Okay, thank you. I want to say thank you, Entab team. Anji, you want to say something? Yes. Yes, Sukhman? For talking to us so nicely, and we enjoyed listening to you. I personally I want to thank the Entab team for giving me this opportunity. Thank you so Thank much. you so much, ma'am. And ma'am, we love your confidence. Thank you. Bless you all and have a great year ahead. And happy Women's Day, it's coming. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, too, Ma'am, for inspiring us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So I've got you captured. Sure, ma'am. All right, ma'am. Thank you so much, ma'am, once again. And God bless you. And I'll always be flabbergasted by, and I'll always be I'll always be awestruck. Okay, now I have to run to the other event. Okay. All right, ma'am. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. Bye, ma'am. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, guys. Bye.